एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें आदित्य ने दी है और वैशाली ने भी दी है, लेकिन वैशाली ने हम लोगों को कंप्लीट पॉडकास्ट की दी थी और आदित्य ने हम लोगों को एक उसमें से क्लिप का एक स्पेसिफिक पार्ट है जो कि देखने को बोला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे बाकी के भी जो क्लिप्स हैं वो हम लोग साथ साथ देखते जाएं जैसे जैसे आप हमें रिकमेंड करेंगे। तो आई होप वैशाली आप नाराज नहीं होंगी। वेल देख लेते हैं ये वीडियो। टाइटल पूछते हैं मौसम से। टाइटल है Saturn and the Devil according to Hinduism, features स्वामी मुकुंद आनंद। वेल देख लेते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Subscribe, hit that bell icon and share this clip if you enjoy it. This is TRS Clips. Something I want to highlight is this concept of Satan that I've been reading about a lot lately. Different cultures call it different names. The devil, evil, darkness, dark energy. What people fail to understand is that just like light, even dark energy is within everybody. And Satan is within everybody. The devil is within everybody. It's just about the proportion of the light versus the dark inside you that actually causes you to think in a certain way or act in a certain way, or be calm versus be, an overthinker. Be positive versus be negative. Be afraid versus be brave. I'd love for you to highlight that because that's what I got from what you just said, sir. That once you go beyond a certain point, you let go of ignorance. I think what you termed as ignorance can also be a part of this dark energy within everyone's minds. And I'll tell you where this is coming from, sir. Yes. What we're trying to do through this podcast, I've always felt, and I know even my closest teammates are all in that same mindset. We put it out with a lot of positive energy. We put it out to spread healing, to spread laughs, to spread good intent. And that's what's given us material success, and that's what's given us numbers and everything that we've gotten. Now, there's a lot of people who are looking at us where we are right now without understanding the 6-year journey we've been on. Someone who's followed us from the beginning understands the things we say now, but someone who probably sees us now doesn't understand why we're saying what we're saying, or why we're talking so much about the things we're talking about, and makes a lot of assumptions about us. So, in interviews, when we are interviewed as YouTubers, we often get asked, does hate affect you? So hate doesn't affect me, but hate definitely creates questions in my mind in terms of why are these people thinking like this. Like, one of the words associated with me a lot is pseudoscience, because I have questions like these, like the questions I've asked you, and I'm sure that word gets thrown at you as well. So I went and asked a spiritual friend of mine that why is this happening? What am I doing wrong? Is it something I need to improve within myself? And that person told me that, hold on, understand the concept of Satan first, and understand this concept of the balance of light energy and dark energy. So one of the outcomes of increasing the light energy within yourself is that all the other dark energy in the world will try pulling your light down. And that dark energy is already within these so-called haters' mind, or these so-called critics' mind, or these doubters' minds. And possibly the dark energy is not liking the amount of light and positivity you're spreading in the world, which is why it manifests as people which are like trying to pull you down, which go out of the way to sabotage your career. And you have to just accept, flow with it, also forgive. You need to understand that in many cases it may not even be those people themselves. It could be their past experiences which have manifested as dark energy, which is trying to now pull away your light and pull away your positivity. So the key is to not get affected and keep doing your thing with laser sharp focus. And that's what's worked for me. But I'd love for you to highlight this conversation a little more so. So, Ranveer, when we bring in the concept of Satan, then the world becomes extremely complicated, because there's this being from which a whole lot of hatred is coming. And if we say that there is an all-loving creator, then where did Satan come from? Who created Satan? If that creator made Satan, then the question arises, why did he make Satan? Right? So, as per the Vedas, there is no such Satan. There is the material energy, Maya. Now that material energy, we can say, is trying to trip us. It's making us angry, desirous, greedy, proud, etc. So these are all the soldiers of Maya
that are within us, that are within the others. And also externally, they exist and you can put them in your bodies. Sure. So, but the point is that Maya also is not an enemy as such. It is also an energy of God. So, from our point of view, everything is connected with that one. And that is why sometimes the scriptures say, Ahameva samevagre nanyadyat sadasat param paschadaham yadetacha yovashishyeta sosmyaham. In the Srimad Bhagavat, Lord Krishna tells Brahma that Brahma ji, when creation did not exist, I alone existed. Everything that is existing in the form of creation is my expansion, because the energies are coming from the energetic. Like the fire emanates the heat and light, so they are one with fire. So all these energies are my expansions. Where creation ceases to exist, beyond that what is there? I exist. And when creation will be dissolved, I will remain. So there is nothing apart from me. That material energy does seem to be opposing us. But the little known secret is that it's actually facilitating our journey forward. And our growth. And our growth. So, very often, now, to find people hating you is a very common phenomenon. Because everybody wants to be successful, but nobody wants to see the success of others. So, if you become too successful, you will evoke the envy of the others. And then people have their perspective. Now, if you go 2 steps ahead of them, you become a visionary. But if you go 50 steps ahead of them, you become a martyr, they want to kill you. Right? So that kind of opposition is natural. But self-growth means that we remain unaffected by this. So self-growth doesn't mean nobody hates me and that's why I'm normal. Self-growth means that people are opposing, and yet we have the maturity and self-control to remain normal. So our effort should be that people are as they are. How can I rise above this? You know, sometimes you may have seen this phenomenon of the crows getting after the eagle. So the crows, they do dive bombing of the eagle. Although the eagle is much bigger. Now the eagle doesn't fight back. The eagle just goes higher and higher and higher until the crows give up. So likewise, when people say bad things, etc., you go within yourself and find your spiritual wisdom to handle that situation and to rise above it. Love what you said about the eagle, sir. And I think there's a lot of people who actually relate with that. जब बात की जाती है शैतान की, सैटर्न की बात की जाती है, तो हम इंसानों से जब कोई भी गलती हो जाती है ना, तो हम इंसानों को ना एक आदत होती है अपना किया हुआ मलबा ना एक दूसरे पे डालने की। तो जब हमें कोई अपने पास नजर नहीं ना आता, तो हमारे दिन में सबसे पहले भाई जो बातें हैं शैतान के बहकावे में आ गए थे, ब्लेम गेम खेलते हैं बिल्कुल हम लोग हमेशा से। बट सीरियसली मुझे बहुत मजा आता है ये पॉडकास्ट सुनने का और चीजें समझने का, एक डिफरेंट एंगल के साथ, एक डिफरेंट आपको सोच आपके चलती है चीजों को लेकर। और मतलब इसमें सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं रणवीर जी को, क्योंकि जिस तरीके से वो हम लोग को डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हमें भी उन चीजों का नॉलेज मिलता है, तो बहुत मजा आता है। और जो स्पिरिचुअलिज्म को लेकर अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ओशन है जहां पर आप जाते हो ना तो आप इसमें डूबना शुरू हो जाते हो। और जैसे कि बीच में ये बात की गई कि डार्क एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो मैं भी ये बात मानती हूँ कि हमारे हर किसी के अंदर ये दोनों एनर्जीज पाई जाती हैं। आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, नेगेटिव वे में भी ले सकते हो, बट हाँ, आप कितना मेच्योरली उन चीजों को हैंडल करते हो और वो चीजें कब आती हैं वो आपको ऐसे नहीं आती। उसके लिए आपको वाकई में एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। आपको एक मतलब ऐसी जर्नी आपकी चलना शुरू जहां पर चीजों को आप अंडरस्टैंड कर सकें,
सिर्फ एक चीज को का जो देखने का नजरिया वो एक नहीं रहना चाहिए, उसका डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। यार मैं अगर बात करूँ ना, जब क्या नाम लेते हैं आप कहते हैं ना कि शैतान का ये सब शैतान का किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि इंसान जो है ना उससे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। आपको पता होता है कि भाई ये काम गलत है, फिर भी आप करते हैं, आप जो है उसकी तरफ जाते हैं। तो उसमें किस चीज़ का रोल है? आपकी बॉडी का रोल है, आपके दिल का रोल है, आपका दिमाग का रोल है। तो मेन फोकस यहाँ पे रहता है कि भाई आपने अपनी ख्वाहिशों को, अपना जो नर्व्स है उसे कितना काबू में रखा हुआ है। आया आप उस पे के ऊपर हावी हैं या वो आपके ऊपर हावी है? जब दिल और दिमाग की जंग चल रही हो ना, दोनों में से जो आपके ऊपर हावी हो जाए ना, आप काम वही करते हैं। बट इसमें एक चीज बड़ी ना अच्छी की है, मुझे बड़ा अच्छी बात लगी कि जिस तरीके से उन्होंने बोला ना कि जो शिव जी हैं वो बोलते हैं कि जितनी भी क्रिएचर्स हैं वो मेरी ही एक्सपेंशंस हैं। तो मतलब जो भी एनर्जी हम लोग को मिलती है वो एक पार्ट रह चुका, उनका एक पार्ट है, जहां तक मुझे मतलब समझ आया है। तो मतलब अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम किसी सिचुएशन में खुद को किसी से बुरा, मतलब अब मान लो कि अगर हम लोग किसी से हेट करते हैं या उसकी सक्सेस से हम लोग जलते हैं, तो हम लोग वो वाला एक एलिमेंट खुद अपने अंदर डोमिनेट करना शुरू हो जाते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग चाहें तो इंसान में इतनी पावर होती है कि वो उसी एलिमेंट को खत्म करके एक पॉजिटिव वे में भी अपनी प्रोग्रेस और अपनी ग्रोथ को आगे लेकर चल सकता है। और मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत सारे लोग आपको हेल्प करते हैं, जो नेगेटिव लोगों की भी मैं बात करूं कहीं ना कहीं पर, क्योंकि वो एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो कि आपको आगे बढ़ने में बड़ी हेल्प करती है। जैसे कि रणवीर सर ने बोला कि जो उनकी भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जो वो सक्सेस अपनी लाइफ में अब देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब फिर बात करते हैं कि किस तरीके से वो अभी जो सामने की चीज है वही देख रहे हैं, जो पीछे उनके इतने साल हैं, 6 साल का एक अरसा है, उसको नहीं देते। और नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं कि लोग ये कहेंगे अच्छा आपके पास इतने सब्सक्राइबर हैं, आप कितना अर्न करते हैं, आपको तो बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई है, मैं करूंगा तो मुझे भी ऐसा हो जाएगा। तो आई थिंक सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सेम टाइम पर होते हैं लेकिन वो आपसे भी आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बजाय इसके कि आप इस भागदौड़ में रहे ना कि हम लोगों को नंबर ज्यादा करने हैं, मुझे लगता है कि आपको ना अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन बड़ी जरूरी होती है उस प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए, रादर देन कि आप नंबर्स को देखें कि हमें नंबर्स को ही इंक्रीज करना है। यार आप जो एक सक्सेस पे आए होते हैं ना, बेशक वो जितने भी दुनिया में लोग हैं, वो जब एक सक्सेस पे आते हैं ना, उसके पीछे जो होती है ना एक बहुत ये दुख भरी हुई कहानियां उनकी होती हैं कि उन्होंने किस तरह चीज़ों को हैंडल किया, किस तरह सरवाइव किया, उनके पहले क्या हालात थे जब उन्हें लोग नहीं जानते थे। एक जानने के बाद जो है ना चीज़ों को वो सामने लाना, ठीक है ना, वो यानी कि जानने के बाद सामने आ जाना, तो वो लोगों में जब आप हाईलाइट हो जाते हैं ना, तो वो लोग आपको फिर इसी तरह ट्रीट करते हैं, यार इस बंदे ने किया कि इन्हें बस ये कर लिया और ये कामयाब हो गया, बस लोग इस तरह लेते हैं। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा हसद की। हसद जो होती है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जो करता है ना उसे भी वो भून डालती है। अब जिंदगी में मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है फेस किया है कि भाई उनसे आगे निकल गए हैं ना, वो अब इस तरह होते हैं कि पता नहीं यार ये बंदा क्या है क्या नहीं है, इसने तो कुछ किया नहीं है, ये ऐसे ही चला गया है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है हमें दोनों को भी फेस करना पड़ी हैं अपने इस पूरे जर्नी में। बट मुझे लगता है कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस प्रोसेस को, स्लो एंड स्टेडी। नहीं अब आके नहीं ये जो क्या नाम लेते हैं इफेक्ट, हाँ इनिशियली मुझे लगता है कि देखो मौसम यहाँ पे मुझे लगता है कि लोग जो अपोज करते थे ना हम लोगों को, उनका तो इफेक्ट मैंने पहले भी कभी नहीं लिया था। लेकिन हाँ कमेंट सेक्शन में क्योंकि शायद उस टाइम पर आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं होती, अगेन हमारी गलती थी कि हम एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। तो मैंने जितने भी पॉडकास्ट सुनती हूँ या फिर मैं जितने भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको सुनती हूँ, सबका मैं देखती हूँ कि लाइफ में ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको काफी ज्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। एग्जैक्टली वही तो कह रही हूँ कि सबकी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स रहती है। कहते हैं ना कि जितनी बड़ी सक्सेस आपको मिलती है ना, उसके साथ उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये आपको अपना माइंड ट्रेन करना पड़ता है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रही थी कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस आए हैं जो कि ना हम कहेंगे कि टर्निंग पॉइंट होता है उनकी लाइफ का,
जिसमें से या तो वो निकल कर बहुत आगे चले जाते हैं या फिर वो वहां पर ही हम कहेंगे खत्म Stuck हो जाते हैं। तो मैंने दोनों तरह के लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, बट ये कि जो लोग स्टक हो जाते हैं उस फेज में, मैंने देखा है कि वो लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी हर चीज को लेकर आ जाती है कि वो हर चीज को ना मतलब उसी एंगल से देखना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो कि हम कह लें कि उनको शायद खुद पसंदी वाली बात कर लें कि वो अपने आप को इतना पसंद करते हैं कि वो अपने अलावा किसी और को उस लेवल पर लेकर ही नहीं आते कि मतलब ये हमारे लेवल का नहीं आता। तो आई थिंक जो चीजें होती है ना आपके अंदर, जो स्पिरिचुअलिज्म है, वो यही चीजें आपके अंदर से खत्म करता है, आपके अंदर बैलेंस लेकर आता है, आपके बॉडी में, आपके सोल में, आपके माइंड में, कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है, कैसे अपनी सक्सेस को आपने सेलिब्रेट करना है, कैसे अपने फेलियर को फेस करना है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपके ऊपर असर करती है। जैसे ये वीडियो में भी बात की गई ना कि कोई आपसे ऊपर है ना, आप उससे नीचे हैं, तो वो बंदा आपके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसके बराबर आ जाए या आप उससे जो है थोड़े से कदम आगे निकल जाए ना, तो उस बंदे के दिल में जो है ना एक अफरा तफरी मच जाती है कि यार ये बंदा आगे कैसे निकल गया, क्यों निकल गया आगे। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा फिर आपके जो है ना माइंड, आपकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा मसले क्रिएट करती है। मैंने एक चीज देखा है कि आप जितना ज्यादा लोगों से वो ना आशना यानी कि ना वाकिफ रहते हैं ना उनके कामों से, आपकी जिंदगी में उतना ज्यादा सुकून रहता है, आप उतने अच्छे तरीके से जो है ना अपनी ड्यूटीज को जो है वो कर पाते हैं। मैं यहाँ पर जाने से पहले ये कहना चाहूंगी कि मुझे ना बहुत मजा आता है इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ बैठकर देखने में, और इसकी रीजन ये है कि मतलब हम लोग अकेले बैठकर भी वीडियोस देख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके साथ हम लोग ये डिस्कशंस करते हैं, अपनी ओपिनियन रखते हैं, और आगे से फिर हम लोगों को भी वो एक डिस्कशन सुनने को मिलती है कि वो क्या सोचते हैं। जैसे होता है ना एक ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं आपके मजाज के मुताबिक, जो कि एक ही टॉपिक को डिस्कस करना पसंद करते हैं, तो मुझे वो वाली हमेशा एक सोच आती है, और उसी सोच के साथ मैं हमेशा चीजें शेयर करती हूँ कि मुझे क्या फील लगता होता है, एंड आई होप आप लोग भी उसी एक फील के साथ हमारे साथ बातें शेयर करते होंगे। और आपका क्या कहना, आपके नजदीक क्या है स्पिरिचुअलिज्म, और या आप किस तरीके से चीजों को बैलेंस कर पाते हैं लाइफ को, या कैसे नेगेटिविटी को खत्म करते हैं अपने अंदर से, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हो सकता है कि उससे किसी को हेल्प हो जाए, हम लोगों को हेल्प हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपकी एक बात से बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।